Sexual Harassment Committee in DC Office Kathua and has been a member of Sexual Harassment Committee at Government Degree College for Women and SSP Office Kathua and various other organizations. She has been running Nari Shakti Jagriti Manch since last 15 years and she has done a tremendous work for the welfare of the society. Be it to increase the old age pension, to provide free medicine and transportation to the people, Madam Ji has left no stone unturned to help the needy people. Even during COVID, she donated 1 lakh face masks to the district administration Kathua. As a result of her selfless service to the society, her NGO received the Best NGO Award by DivCom on 15th of August 2021. I think she needs a big round of applause for her services. आपका स्वागत करने की मुस्कान और हाथों में गुलदस्ता लाए हैं. Now I request District Social Welfare Officer Mr. Abdul Rahim Ji and Mrs. Sushma Mahajan to present a bouquet to SSP Kathua Mr. R.C. Kotwal. Places and but still women are sexually harassed in their workplaces and even their home by many of the relatives too. Today let's say about it and say it loud and clear, sexual harassment is not a joke at all as we think. Like many people say that sexual harassment is people do for their fun, like rapes we say about it, even 3 months to girls and 8 months girls are getting raped and so easily for the men. That's all I'm saying. But let me ask, what do you mean by sexual harassment? We all know its definition and meaning, but why don't we discuss about it? That's the question arises. We don't discuss about it because the word is so creep to discuss about it. No one in this world deserves to be, getting sexually harassed, whether men or women, whether men. Yeah, you heard correctly, whether men. It's not important that only women are getting harassed, even the men are also getting harassed in this world by many, like emotionally harassed or mentally harassed. हो गई हैवनियत की तो हद हो गई, इन्हें दबोचे जा रहे हो, इन्हें दबोचे जा रहे हो. बलात्कार जैसे घिनौने काम, बलात्कार जैसे घिनौने काम तुम क्यों किए जा रहे हो? क्या शर्म सी नहीं आती तुम्हें? क्या शर्म सी नहीं आती तुम्हें? क्यों इन्हें पीटे जा रहे हो? बिना मतलब क्यों इन्हें जमीन पर घसीटे जा रहे हो? बिना मतलब क्यों इन्हें जमीन पर घसीटे जा रहे हो? कदर नहीं कर सकते इनकी तो, कदर नहीं कर सकते इनकी तो, कदर क्यों उतार रहे हो? कदर क्यों उतार रहे हो? घुटन भरी जिंदगी में इन्हें क्यों धकेले जा रहे हो? घुटन भरी जिंदगी में इन्हें क्यों धकेले जा रहे हो? प्यार करना जुल्म है, प्यार करना जुल्म है तो खुद क्यों किए जा रहे हो? तो खुद क्यों किए जा रहे हो? अपनी गलतियां क्यों तुम इन पर थोपे जा रहे हो? अपनी गलतियां क्यों तुम इन पर थोपे जा रहे हो? यकीन नहीं होता तुम ऐसा क्यों किए जा रहे हो? यकीन नहीं होता तुम ऐसा क्यों किए जा रहे हो? खुलेआम महिलाओं के कत्लेआम किए जा रहे हो, खुलेआम महिलाओं को कत्लेआम किए जा रहे हो. And a lot of time to be recognized as a real issue. But nonetheless, it's the start that can protect those who are being harassed. Sexual harassment don't come in single form. It comes in many forms. For example, if someone is trying to touch you or someone is trying to grab you without your consent, that is included as one. It's also counted as if someone is continuously staring at you, so that is also counted as one. Also, the perpetrator tries to display offensive and rude material so that others can see it. It also tells that you are being harassed. It can impact the offender not.
it can't impact the offender. But the victim is affected severely. It may stress out the victim, or they may start getting anxiety and depression. They may start withdrawing from social situations. So you can see, if they are starting withdrawing from social situations, it means बारे में हम समाज में बात करने से शर्माते और हिचकिचाते हैं। वह विषय है यौन उत्पीड़न। मैं भोर कली सांझ तक रोज कुचलती जाती थी। मैं भोर कली सांझ तक रोज कुचलती जाती थी। पागलपन के पांव तले बेखौफ मसल दी जाती थी। मैं वही आवाज हूँ, मैं वही आवाज हूँ जो पेट से बोला करती थी। कल तक मैंने गाया था कि भ्रूण हत्या पाप है, पर अब ऐसा लगता है कि उस बाप ने उपकार किया था जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया था, वरना किसी चौराहे पर गर्म खून से सड़ जाती वो दूजी निर्भया गुड़िया, या फिर दामिनी बन जाती वो दूजी गुड़िया निर्भया, या फिर दामिनी बन जाती वो। जो एक इंसान को अनकंफर्टेबल, ह्यूमिलिएटेड और स्ट्रेस फील करवा और अपने दिल की बात बाहर निकाल सकते हैं। आप सभी अपने माता पिता को या अपने दिल के सगी संबंधी जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं, उनसे अपनी हर बात कह सकते हैं जो आप पर बीती है। हम देख रहे हैं कि आज मौन उत्पीड़न ना कि महिलाओं के साथ बल्कि पुरुषों के साथ भी बहुत हुआ है। मैं कहती हूँ कि महिलाएं आज अपने मौन उत्पीड़न के बारे में शायद बोलती हैं, लेकिन पुरुष नहीं बोलते, क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ, लड़की के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज के ज़माने में पुरुष भी उसी स्थिति में आना शुरू हो चुके हैं। हम कहते हैं कि आज जैसे कि किसी बच्चे को उसके अध्यापक ने डांटा, वो स्ट्रेस में आया और अगले दिन हमने सुना कि हाँ, उसने आत्महत्या कर ली। मतलब आज पुरुषों के पास इतनी सी भी उनके पास क्षमता नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि वे इन चीज़ों को टॉलरेट कर सके और इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी बस इन टॉपिक है वो है हरासमेंट ऑन वुमेन्स। वुमेन किस किस किस्म की हरासमेंट को झेलती हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल हरासमेंट। आप में से मैक्सिमम लोगों ने थप्पड़ मूवी देखी थी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके कोलीग्स को, आपके कोवर्कर्स को, आपके इन लॉज को, आपके हस्बैंड को कोई राइट नहीं है कि वो आपको फिजिकली असॉल्ट कर सके। अगर वो आपको फिजिकली असॉल्ट करते हैं, इट मीन्स यू आर बीइंग फिजिकली हरास्ड। यू हैव टू टेक एक्शन ऑन इट। आप कोई कठपुतली नहीं है, आपको कोई फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड वन इज इमोशनली हरासमेंट। अब ये जो इमोशनल हरासमेंट है, ये हर कोई सफ़र नहीं करता। एक वीक, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड की लड़की है, उसकी शादी होती है, इन केस हम कहते हैं कि डॉरी सिस्टम खत्म हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहीं हमारी बहनें हैं ऐसी जो सुसाइड कर लेती हैं, कोई खुद को मतलब जला देती हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल हरासमेंट उनसे साथ हो रही है, उनके इन लॉज उनको इमोशनली हरास कर रहे हैं, उनके अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि वो उस हरासमेंट को कोप अप कर सकें। SSP कठुआ श्री RC कोतवाल जी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्री अब्दुल रहीम जी, वीमेन पुलिस स्टेशन कठुआ मिस अनुराधा जी, मिस सुषमा महाजन जी, dear students of Government Degree College Kathua and special correspondents of press and electronic media, may I welcome our chief guest in today's function, SSP Kathua Shri RC Kotwal ji. Sir, it is a great occasion on the part of Government Degree College Kathua, especially the students and the faculty members of this institution, to have your benign presence in this awareness function being organized by NGO Nari Shakti Jagriti Manch Kathua. Sir, so far as the schedule is concerned, that is already very hectic. I know that you have to perform so many duties, so many obligations are there. But I think I am really thankful for the time you spared for this institution. And sir, I have been in this in the past 3 months, and I am highly thankful to our esteemed SSP.
आज के इस डिग्री कॉलेज कठुआ के हॉल में बैठी हुई मैडम सुषमा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ जसरोटिया साहब, यहाँ पे आए हुए जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. We have been witnessing a very interesting topic today, that is the harassment and awareness in the educational institutions. मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, और खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज इन टुडेज वर्ल्ड. वी हैव बीन विटनेसिंग लॉट्स ऑफ वुमेन हैरेसमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, और पुलिस में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स बट फ्रॉम द स्टाफ एट टाइम्स ऑल्सो. और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों ने अपनी बात कही और सब ने अपनी अपनी कोशिश से एक चीज़ को एम्फसाइज किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो वुमेन्स की हरासमेंट है वो एक सीरियस इशू है. हम सबको ये एक्सेप्ट करना है. जो लोग भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, या सुषमा जी के जैसे ये लोग एनजीओ चलाते हैं, तो इन चीज़ों को हमें एक प्रोस्पेक्टिव व्यू में लेके इनको एक एप्रोप्रिएट लेवल पे लेके आना है. मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनको इस बात का मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी स्कीम अभी स्टार्ट हुई है. उसको कहते हैं वन स्टॉप सेंटर. निर्भया रेप केस के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई हैं, और उसी गाइडलाइन का एक एक्सटेंशन सेंटर है जिसको वन स्टॉप सेंटर कहते हैं. ये मैडम सुषमा को भी मैं बताऊं कि उसमें सोशल वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का वो एक वन स्टॉप सेंटर बनने जा रहा है. कठुआ में अभी लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको चलाने के लिए कोई एनजीओ या स्टाफ अवेलेबल नहीं था. अब उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी एक बिल्डिंग, एक अंडर वन रूफ आपको किसी भी किस्म की हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, दैट विल बी डेल्ट अंडर वन रूफ. और मुझे लगता है कि हमारी वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ यहाँ बैठी है, उससे इनका भी वर्कलोड थोड़ा कम होगा. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस हाउ इट हैज हैपेंड, व्हाई इट स्टार्टेड, हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए. मुझे लगता है कि आपका पर्सनल जो इंडिविजुअलिटी है उस पर डिपेंड करता है. बहुत सारे बच्चे या बच्चियां उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स उसको रिपोर्ट नहीं करती. बहुत सारे लोग जो है इतनी करेज को मस्टर करते हैं कि वो उसमें रिपोर्ट करते हैं, उसमें कार्रवाई भी होती है, और बहुत सारी केसेस में लोगों को पनिश भी किया जाता है, उनको कोर्ट्स के थ्रू भी पनिशमेंट हो रही है, और इसमें फास्ट ट्रैक पे काम भी हो रहा है. मुझे लगता है कि कठुआ डिग्री कॉलेज में जैसे प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि अराउंड अबाउट 4400 बच्चे हैं जिसमें से 2200 प्लस गर्ल्स हैं. तो इसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज कहने के बजाय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स कहना चाहिए, जहाँ बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स होते थे. और मुझे लगता है कि इससे बच्चों में बहुत सारी जो क्लैरिटी या रिस्पेक्ट या एक दूसरे को डील करने की एक कॉन्फिडेंस भी then Neha Sharma, Sakshi Chip, माधवी देवी. जो एक एनजीओ मैडम सुषमा चलाती हैं कठुआ में, उन्होंने डिग्री कॉलेज कठुआ के कोलैबोरेशन के साथ आज
हरासमेंट अवेयरनेस का एक कैंपेन किया यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और उसी के सिलसिले में हम लोग भी आए थे। क्योंकि डिग्री कॉलेज कठुआ में 2000 से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो हम सबको लगा कि यहाँ पे जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। और जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, वन स्टॉप सेंटर यहाँ बनने जा रहा है, जिसमें कलेक्टिवली वुमेन रिलेटेड जितनी भी वायलेंस और जितनी भी इश्यूज़ हैं, दे हैव बीन ब्रॉट ऑन टू वन रूफ, और वहाँ पे वो जा सकते हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन जैसे हमारे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले टाइम में यहाँ पे जो हमारी बेटियाँ हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनमें हमने अवेयरनेस भी जनरेट की है। बहुत सारी स्कीम्स का, बहुत सारे इश्यूज़ का लोगों को पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेल द पीपल के यहाँ पे आप अपने किसी भी ग्रीवांस को, किसी भी हरासमेंट को, अवेयरनेस के लिए अगर आपको कोई नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं और कहाँ पे वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके सिलसिले में आज मैं भी आया था और यहाँ पे बच्चों और स्टूडेंट्स के साथ बात करके, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से और इनके स्टाफ के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सर क्या देखते हैं कितना जल्दी? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट कठुआ में एटलीस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, पिछले कुछ सालों में इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। वो जो आप राइज़ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कई बार पहले शायद अनरिपोर्टेड था, और अभी चूँकि इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है, निर्भया केस के बाद बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, इवन पुलिस में भी बहुत सारे इन इश्यूज़ को सीरियसली लिया जा रहा है। तो इसलिए शायद वो नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़े हैं, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें उतना ज़्यादा जो शार्प राइज या वॉरिंग साइन जो है वो अभी तक नहीं है। बहरहाल हमारी सोसाइटी बहुत ही पीसफुल और बहुत ही हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आगे जाके कम होंगी, बढ़ेंगी। महाजन चेयरपर्सन नारी शक्ति जागृति मंच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा हमारी संस्था जो है हर तरह के मुद्दे को उठाकर उसका अवेयरनेस का कैंप लगाते हैं, जहाँ किसी भी तरह का, जैसे हमने वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि हमारी महिलाओं के साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई भी जो हरासमेंट है अगर किसी के साथ होती है, उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने जीडीसी कठुआ में रचना जी, जो कि कोऑर्डिनेटर है वुमेन स्टडी सेंटर की, इनके साथ डॉक्टर अमता दुआ जी और राजकिरण जी जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका सीमा सहयोग से हमने जहाँ पर एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चीफ गेस्ट रमेश कोतवाल जी जो एसएसपी कठुआ है, उनके आने से प्रोफेसर सुमनेश जसरोटिया जी जो कि प्रिंसिपल जीडीसी है, उनके आने से अब्दुल रहीम जी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, और डिप्टी डीएसपी शमी कुमार जी, एसएचओ पुलिस स्टेशन है ओम प्रकाश जी, एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन के, और इसके अलावा कई स्कूल की चेयरपर्सन और प्रिंसिपल जहां पर आए थे। बच्चियों ने अपना बहुत ही सफलतापूर्वक जो है इस पर एक लेक्चर दिया और इस इवेंट को जो है बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। और मैं थैंक्स करती हूँ महिला शक्ति केंद्र की इतिका जी जो स्पेशल हमारे बुलाने पर जहाँ पर आई। और इसके अलावा जो प्रोग्राम हुआ, इस तरह के प्रोग्राम हमें अगर रचना जी और अन्य कॉलेजेस के सहयोग से मिलते रहे तो आगे भी हम इन प्रोग्राम को करते रहेंगे। अवेयरनेस जो है एक ऐसी एक कहते हैं कि इसके द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम है जो सफल बनवा सकते हैं। स्टाफ, बच्चे सभी का तहे दिल से हमारी संस्था शुक्रिया अदा करती है और आगे भी हम कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम रचना जी और उनके करते रहें।